Bhole Baba ki jai. I am Kirti Sharma. I am granddaughter of Sri Muniraj, blessed to be so. And I was actually born in Haldwani, but when I was 2 years old, Dadu got me, my mum from Haldwani, and we stayed in the ashram right here at Anandpuri Ashram. And since then, this place has been my home, my place of devotion, and it's been everything since then. Daduji has been an inspiration for me, although I've never seen Babaji. I've always heard his stories, and like people believe in Ramayana and people believe in Mahabharat, because दंत कथाएं बोलते हैं ना, पहले आगे से सुनाई देती है, सब सुनाते हैं बड़े, और हम छोटे उनको सुनते हैं जैसे असलियत में ये हुई होंगी. तो वैसे ही बाबा जी हमारे लिए बचपन में तो सिर्फ दंत कथा ही थे, हमारे बड़े कहानी सुनाते थे. वी यूज्ड टू लिसन टू देयर स्टोरीज एंड एक्चुअली उस समय तो लगता था कि सिर्फ कहानियाँ हैं, पर जैसे जैसे आप बड़े होते हो, अब उन बड़े लोगों का आप डिवोशन देखते हो, स्पेशली दादू का उस चीज़ को लेके डिवोशन देखते हो, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कि इसमें रियलिटी का टच ज़रूर है और आपको विश्वास होता है. क्यों किसी को कैसे कोई भी जनरेशन पुरानी कहानियों पे कैसे विश्वास करती है, जब उस कहानी को आप बार बार सुनते हो और आपको उसमें कहीं ना कुछ पोर्शंस मिलते हैं जो आपकी सच्चाई से और आपकी लाइफ से जुड़ते जाते हैं, आपको उस पर भरोसा होता है. उसी तरीके से मुझको भी बाबा जी पे पूर्ण विश्वास है, और दादाजी की वजह से ही शायद बाबा जी के इतने बड़े परिवार से हम लोग मिले हैं. और मेरे लिए कभी मेरा ब्लड रिलेशंस जो क्वारबी फैमिली कहते हैं, सिर्फ वो एक फैमिली नहीं थी. सिंस वी वर किड्स, the Herakan Samaj was our family. Everybody was welcomed in, everybody was treated like family. We devoted our entire life towards serving Babaji's cause. And I remember since I was a kid, we used to serve teas, simple chores. You don't have to offer any big words or, express or influence or convince anybody. But जैसे दादाजी करते थे, he hardly spoke any words when you sat in front of him. He didn't convince anybody, he didn't talk to anybody in a way. But the way, his aura was so strong, and his presence. I remember, my God, I get goosebumps whenever I think about it, that whenever he used to be around, he didn't have to use words to explain that you're in presence of a divine power. आप जब इस मंदिर में बैठते हो, जो ऑरा आपको फील होता है, जो शक्ति आपको फील होती है, वही दादू के साथ फील होती थी. तो हम पे तो बाबा जी की इतनी बड़ी कृपा थी कि पूरा हमारा परिवार उनकी छत्र छाया में पला बड़ा, इतना कुछ सीखने को मिला. और गलतियाँ करते थे, डांट खाते थे, अच्छा करते थे तो बड़ाई मिलती थी. That's the only way that we were encouraged to do all the rituals and everything. कुछ समझ में सब कुछ ना भी आते हुए, we followed everything, और धीरे अब थोड़ा बहुत समझ में आता है, which is wonderful. That's a very personal question, and I'm really glad that you asked it, because I tussle with it every day. Every day that you live, you are in between of the spiritual world and the the actual world that you live. Your kids have got to go to school, you've got to cook, all the house management, the things that you need to manage the house, the business work and everything. So how do you bring Babaji into it? So I'm presuming that that's the question. So what I say is, Herakhandi Samaj is not just following any mantra or following any a strict ritual, but I think that it's a way of life. You accept it, you imbibe it. The mantra that Babaji gave, truth, simplicity and love, that is something, it is so simple, yet it is so widely applicable. Like in everything you do, in every little thing that you do in life, if you just walk by, think what he said, and you try to make decisions according to it, then
I think you'll find the balance between the two. And that's exactly what I try to follow. And जब आप यहाँ आते हो, वो spirituality, obviously this place has got that aura that draws people back all the time. And no matter where I go, this Herakhandi Samaj has always been around me, And I try to explain it to people, but you need to be here to actually experience it. आप यहाँ आके ही उस चीज़ को अनुभव जब तक नहीं करेंगे, आपको वो शब्दों में कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. You actually have to be here, physically present and experience what exactly it is. So I was discussing with my mother this morning that, once she had a dream of Babaji. She didn't tell it to anybody. She told it to me, and we were sitting in Muniraji's temple downstairs, where he did penance for 40 long years, did Havan every day. And सुबह का उनकी पूजा होती थी. I remember उनकी घंटी और वो धूप से हम लोग उठते थे. So that memory is always on my mind. But when, so this morning when that we were talking, coming back to the story, was that, so my mama dreamt of Babaji. So she was so excited, she was waiting to tell it to Dadu. Dadu was doing puja, and my mother went and sat next to him and said, Babu. And she hardly speaks to him, we hardly speak to him. And he, so he said that, shh, मुझे पता है, आपको मुझे पता है, और तुम किसी को मत बताना. बाबाजी जब भी आते हैं तो किसी को बताते नहीं हैं. और वो चीज़ मैंने सुनी और मैंने कहा इनको कैसे पता. एक बार मेरी सबसे बड़ी बुआ, जो दादाजी की सबसे एल्डेस्ट चाइल्ड थी, उनकी तबीयत ख़राब होने से एटलीस्ट 1 महीना पहले, शी इज़ नो मोर नाउ, बाबाजी रेस्ट सोल, बट उससे पहले, उनकी 1 महीना तबीयत ख़राब होने से पहले उन्होंने कहा मम्मा को और सबको, बुआ को, फूफा जी को, चलो जागेश्वर चलते हैं. दादू ने तो गए जागेश्वर में मम्मा पूजा करती है, मम्मा रोज़ करती है उनके साथ, तो मम्मा आगे बढ़ के पूजा करने लगी. तो दादू ने कहा तुम रुको, शांति को बुलाओ, वो करेंगे. सो बड़ी बुआ स्टार्टेड डूइंग पूजा एंड शी डिड एवरीथिंग. और उनसे बैठ के वहाँ त्र्यंबकम में जहाँ महे का महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कराया 108 बार. As if he knew that something was going to happen to her. हम में से किसी को कोई आइडिया नहीं था, ना कोई उनका टेस्ट हुआ था तब तक, ना कुछ हुआ था. और फिर घर से खाना बनवाया था, और फिर कहने लगे, वहाँ से वापसी में एक बड़ा बरगद का पेड़ था, और कहने लगे कि वो मेरा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग खाना खाएंगे. सो इट वॉज लाइक, जैसे उनको पता था कि बुआ हमारे साथ ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रहेंगी, और बुआ का वो आखिरी अपने साथ ले जाके वो पूजा कराना, एज इफ ही वांटेड टू फ्री हर सोल, उसके लिए वो लेके गए हो. ऐसी कई कहानियाँ हैं. एक देयर इज़ दिस इटालियन लेडी जो बचपन से हमको देख रही थी. सो आई वोंट टेक अ नेम, बट आई डोंट नो इफ शी वांट्स द स्टोरी टू बी आउट, but I won't take her name, but the story was like she was worried, she saw that everybody in India within time they get married. तो उनको ऐसा लगा कि अब उनका भी समय आ गया है, तो जाके दादाजी से उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूँ, आई वुड लाइक टू गेट सेटल्ड नाउ. ये सब कहते हैं चिंता मत कर, तेरे लिए मैंने हॉलैंड में किसी को ढूंढ रखा है. उसके 2 साल बाद शी एक्चुअली एक्सीडेंटली मेट अ पर्सन जो यहीं हेड़ाखान समाज में आए, और उसके बाद आए 2 साल बाद उस बात के, और उनको उनका लाइफ पार्टनर यहीं मिला. और बाबाजी दादू ने उनसे कहा देखा मिल गया ना. सो एज इफ ही न्यू थिंग्स बिफोर, और वो जताते नहीं थे. ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन. ईगो उनमें था ही नहीं. जो नॉर्मल इंसान होता है उसमें थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, पर दादू के साथ कभी नहीं. मुस्कुराते थे हर बार, एवरी टाइम ही जस्ट यूज्ड टू सिट एंड स्माइल. कितनी फैमिली में ट्रबल्स होते थे, कितना कुछ होता था, एज इफ उन्हें पता है कि वेयर इज दिस गोइंग, बट नेवर रिवीलिंग दैट ही इज गॉट दिस पावर टू सी, एंड
मुझे लगता है एक समय के बाद साथ अगर इतना लंबा टाइम आप एक डिसिप्लिन फॉलो करो और अपने आप को एक नित्य क्रम में बांध लो, तो आपके अंदर खुद एक आप अंदर कुछ जगाते हो जिससे ये सारी पावर्स आती है जो बाबा जी ने उनके अंदर देख ली थी। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी जो मुझे पता है कि दादू एक्चुअली बाबा जी से कैसे मिले। सो दादू वॉज ऑलवेज अ स्पिरिचुअल मैन, बिसाइड्स बीइंग अ बिजनेसमैन। वो हमेशा ही संतों महात्माओं को अपने घर बुलाते थे और भंडारे करवाते थे, पूजा, सुंदरकांड रोज़ होती थी घर में, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, सब बच्चों को उनके कंठस्थ सब याद था। और यहाँ भी जब रानीखेत में रहते थे तो उनकी पूजा अर्चना ऐसी चलती थी। तो द फोर्थ किड ऑफ दादाजी वॉज एक्चुअली देवी बुआ। शी वॉज द नॉटिएस्ट अमंगस्ट ऑल। वो स्कूल जाने के बजाय बंक मार के एक बार चली गई कटघरिया आश्रम में ही दादाजी एक्चुअली बाबा जी से पहली बार मिले थे। सो शी वेंट कि चलो वहाँ खीर बनी हुई है भंडारे में, लेट्स गो एंड हैव दैट। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई। भीड़ लगी हुई थी दूर तक का, और बाबा जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। आई थिंक बरगद था, पीपल था, तो उसके नीचे बैठे थे ऊंचाई पे। दूर तक का उन्होंने देखा, बुआ को ऐसा लगा वो उन्हीं को देख रहे हैं। एंड एक्चुअली उस सभा में जितने लोग थे सब लोग यही कह रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बाबा जी हम ही को देख रहे हो। तो दूर पे वो उन्होंने देवी बुआ को देखा और बुलाया और कहा क्यों? देवी बुआ को लगा मैं तो पकड़ी गई है तो डेफिनेटली बाबू को जानते हैं, दादाजी को जानते हैं और डांट पड़ेगी। वो डरते डरते गई बाबा जी के पास, हाथ जोड़ा और कहा कि बाबा जी ने कहा क्यों, तेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है? उन दिनों दादाजी जी की एक्चुअली तबीयत ख़राब चल रही थी। तो उन्होंने कहा हाँ। बुआ ने सोचा हाँ जानते होंगे तो उन्हें पता होगा बीमार है। तो उन्होंने प्रसाद कहा ये ले अपने बाबू को प्रसाद दे देना। उन्होंने पकड़ा प्रसाद, भंडारा किया, घर गई। उस दिन लेट हो गई, दादाजी डंडा पकड़ के वेट कर रहे थे बुआ का। फिर उन्होंने जैसी डांट पड़ने वाली थी उन्होंने प्रसाद आगे किया, दादू ने प्रसाद खाया। खाते ही दादू की तबीयत ठीक हो गई। और फिर दादू ने कहा कहाँ से लेकर आई प्रसाद? उन्होंने कहा कटघरिया से। फिर दादाजी बाबा जी से मिलने के लिए गए। सो ये कथा हमको पता है कि कैसे दादाजी आए। और बाबा जी जब यहाँ आए तो पहले हम लोगों का एंसेस्ट्रल घर नीचे था बधाड़ गांव में। वहाँ से दादाजी ऊपर आके आनंदपुरी आश्रम, जो ये चिल्लियानौला का आनंदपुरी आश्रम जिस प्रमाइस में बना हुआ है, दिस वाज एक्चुअली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हम लोगों की, क्वर्बी फैमिली की। तो वहाँ पे सिर्फ एक घर हुआ करता था। एंड माय दादी यूज्ड टू लिव हियर विद हर किड्स। दिस वाज ऑल जंगल। एंड तो दादू ने, बाबा जी आए तो बाबा जी ने कहा वहाँ धूनी बनाई है ऊपर। तब जहाँ पे 9 दिनों का हवन होता है उसके अंदर एक एंसेस्ट्रल धूनी बनी हुई है जिसमें जो शस्त्र हैं, हर धूनी में वो रखते हैं ना, त्रिशूल रखते हैं, चिमटे रखते हैं, वो सब हमारे एंसेस्ट्रल वहाँ मंदिर से आए हुए हैं। तो वो नंगाड़े, ढोल नंगाड़े और निशानों के साथ बजाते हुए ऊपर लेकर आए, उनको यहाँ स्थापित किया और फिर धूनी बनी। उस समय बाबा जी आए तो टेंट्स में ही रहे, कोई आश्रम तो कुछ था नहीं। और फिर जब इस मंदिर की स्थापना हुई तो इसका पहला स्टोन रखने के लिए, पहला फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए पूजा के बाद दादू ने पापा को बुलाया, श्री देवान सिंह कुंवर, और वो पहला पत्थर उन्होंने ही रखा। और वहीं से इस भव्य मंदिर का शुरुआत हुई। और यहाँ पर इतने लोग आके जा चुके हैं और हर किसी की अपनी बाबा जी और दादाजी को लेके एक पर्सनल कहानी होती है। तो और जो भी नया इंसान आता है उसको कभी ये नहीं लगता कि वो यहाँ पहले कभी आया ही नहीं है। उनको लगता है कि they've been here, they've been connected through to this place through years and ages. People have actually recognized Babaji's face. Although they visited, they've been here for the first time, they would just look at Babaji and say कि इनको तो मैंने कहीं देखा है पहले। जो भी न्यू कमर यहाँ पे आता है कभी कभी उसको लगता है कि बाकी सारे समाजों से ये समाज बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनातन धर्म, कि यहाँ के जो रिचुअल्स होते हैं यहाँ पे सनातन धर्म एक्चुअली फॉलो किया जाता है।
किसी भी का कोई कास्ट क्रीड या कोई ऐसा नहीं है। कई जगहों पे मैंने ये भी देखा कि आप औरतों को हवन में नहीं बैठा सकते हैं, पर आप देखेंगे यहाँ पे औरतें हवन करती हैं, या वो अभिषेक में नहीं घुस सकते, या और ऐसा यहाँ पे कोई वो नहीं। यहाँ पे सनातन धर्म को एक्चुअली उस एसेंस में लिया गया है जो मुझे लगता है जिस बेस पे हिंदुइज्म बना था, और वो हर किसी के परसेप्शन से हर एक प्रांत में जो बदलता रहता है। तो मुझे इस जगह की स्पेशलिटी ये लगती है क्योंकि इतनी जगहों पे मैं भी भजन करने जाती हूँ, पूजा करने जाती हूँ, पर ये जो टुगेदरनेस होती है कि आप हर किसी को इन्वॉल्व करके पूजा करते हैं, और हर कोई वेलकम्ड है। आप जब जयकारा होता है तो आप सुनेंगे ईसा मसीह की जय, और तो वो जो बैलेंस कर रखा है बाबा जी ने हिंदुइज्म के साथ, वो जो पुरानी हमारी एक्चुअली जो ग्रंथों में हिंदुइज्म है ना, उसको अगर एक्सपीरियंस करना है आपने तो हेड़ा खान इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी। So, no matter where you are in the world, no matter where you are, what situation it is, आप कहीं भी किसी भी देश में हैं, wherever in the world you are, if you actually want to experience what divinity actually is, what peace and quiet and calm can bring to your life, what truth, simplicity, love, the simple words like truth, simplicity, and love can how these three words can actually change your life, then I would just request you and actually urge you to come to Hera Khan and experience Babaji, experience Dadaji and his divinity. Bhole Baba ki jai.